हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। वेलकम है आपका, स्वागत है आपका इन द सीरीज ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज बेटा आई एम डिस्कसिंग, अभी हम बात कर रहे हैं सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट की, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल स्टार्ट विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, अगर आप इस सीरीज को हिट कराते हैं तो डेफिनेटली संतन सर, रेणु सर, अनंत सर और लॉरेंस सर, सभी लोग इस टाइप का पॉइंट या इस टाइप के कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे। In this particular session, I just want to suggest you, my dear friend, many times such type of question are arising in our mind. कि sir, really we know the theory, we know the concept, but we are not comfortable to handle our question in the examination center. So, what is the main reason behind it? Maybe we are just familiar with the theory, we are maybe just familiar with the concept, okay, but due to lack of practice we are not capable to handle questions in the examination period, especially when we are having a restricted time. So sir, in the restricted time, how we can score more than 80% marks, or more than 90% marks, or roughly we can say more than 75% marks in the GATE examination? So it is going to be a tough job now. I assure you, my dear friend, if you will follow only single thing, you will get more than 75% marks in your subject. Why I am saying this sentence at this moment? Because we are having almost 1 year remaining for upcoming GATE examination. And definitely we have learned a lot of things from our previous GATE examination, okay, as well as from our friends, our faculty members. So definitely आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और नहीं होता है कि यार जो हमारा पास्ट होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो पास्ट से जो नहीं सीखता है, यकीन मानिए फ्यूचर उसका मतलब उतना ब्राइट नहीं हो पाता इन जनरल वे से। सो या तो भाई बहुत बड़े रिसर्चर हो, और अदरवाइज तो हमें थोड़ा पास्ट को फॉलो करने पड़ता है कि यार पास्ट में क्या गलतियां की लोगों ने या मैंने, जो हम सफल नहीं हुए, और प्रेजेंट में हम उसको सुधार के फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यही एक कारण है कि आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। ओके, सो you will get this series every day at 8 p.m. Now the question going to be raised again. Sir, in the examination center we have to give main what should I say? Ki sir, in the examination center we have to give more focus to reduce the time, or to get or to receive high accuracy. My dear friend, actually we have to do both. Okay, we have to reduce the time of the solution of the question, as well as our accuracy must be around 100%. Okay, so see, this thing is really not feasible if we are not good in our subject, or in other words we are not best in our subject. सर, तो उसके लिए तो हमें मास्टर होना पड़ेगा, या डेफिनेटली हमें मास्टर नहीं होना पड़ेगा, बट या वी कैन से काइंड ऑफ बी ए मास्टर। ओके, हाँ भाई, मान लीजिए कि रवि सर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ उसका 80-90% हमें टच करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ अभी फेमिलियर हैं, या मैं ये कह दूं कि आप बहुत यंग ब्लड हैं, ऊर्जा भरी हुई है बहुत ज्यादा। थोड़ी बहुत मुझ में भी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मुझसे आप में ज्यादा है, तो आप और अच्छी इफिशिएंसी के साथ खेल सकते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चन मैं ज्यादा टाइम में करूं, आप उसको लेस टाइम में कर सकते हैं। ओके, बट फिर भी थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन गिव सर मैक्सिमम एक्यूरेसी इन द मिनिमम टाइम फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें अभी सब्जेक्ट जो चल रहा है वो सर्किट थ्योरी है। अगर आप इसको हिट करते हैं तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट टू माय कलीग लाइक संतन सर, रेणु सर एंड एवरी फैकल्टी, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ क्वेश्चन इन द सेम वे। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन उठाते हैं। इन द टुडे सेशन आई हैव जस्ट कंसीडर्ड वन क्वेश्चन सो दैट you can learn this particular concept, okay, whatever we will use in the today question. Okay, so the beauty behind the today question is nothing but we have to use some power. Okay, sorry, we have to calculate some power of the element. So basically almost every electrical, electronics and instrumentation guys having some doubt related to RMS values and average values. So really we are a bit confused कि where we have to use average value और where we have to use RMS value. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस कंसेप्ट को डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। एक अगला और पॉइंट आता है बेटा अपने जहन में, एंड दैट इज नथिंग बट कि सर
क्या ऐसा कोई प्रूफ है जिसमें हम एवरेज और आरएमएस को बहुत सही से समझ सकते हैं? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, every Monday, Tuesday, Wednesday I take classes of circuit theory in the Prachand batch on the YouTube platform, every Monday, Tuesday, Wednesday at 6 p.m. Okay, so you have to I think enjoy, you have to join our live session, okay, एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑन एट 6 p.m. ठीक है, तो वहां पे आप सारी सीरीज को फॉलो करिए एंड आई एश्योर यू, इट्स माय ओपन चैलेंज बेटा, यू विल नेवर एवर गेट सच टाइप ऑफ एनालिसिस इन द सर्किट थ्योरी. इट्स माय ओपन चैलेंज. इफ यू विल से कि सर या आई हैव दैट मच ऑफ नॉलेज थ्रू एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, देन आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा. ओके, सो इट्स माई ओपन चैलेंज. क्योंकि अभी हम लोग लगभग आई एम नॉट डैम श्योर, बट मे बी वी हैव डिस्कस सर्किट थ्योरी अराउंड 12 to 15 आवर्स. ओके, और इतने घंटों में हम सिर्फ पहुंचे हैं अभी तक केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ पे. इसके अलावा हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है. तो कल के लेक्चर, यानी कि कल है मंडे, तो कल हम लोग मिलते हैं प्रचंड बैच के 6 PM वाले सेशन में भी. लेकिन उससे पहले वहां पे आपके सारी डेरिवेशन भी मिलेंगे. ओके, लाइक एवरेज आर में सबका मिलेगा. लेकिन आज के क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर, ओके, लाइक गेट एग्जामिनेशन या मैं बात करूं और अदर एग्जाम जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, सभी के लिए आपका मोस्ट वेलकम है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7. तो अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में अपने पास कोर्सेस हैं इलेक्ट्रिकल के, ईसी के, मैकेनिकल के, सिविल के. टू टेक पेड कोर्सेस ऑफ एनी स्ट्रीम यू कैन यूज माय डियर फ्रेंड माय कोड Y503 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी आज का पहला और आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी फाइनल आंसर. तो सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, pause the screen and try to solve this particular question. जो भी आपका आंसर आए फिर आप सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, आपको एकदम से वीडियो देखने की जरूरत नहीं, उस केस में आपका माइंड इंप्रूव नहीं होगा. आपको मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, आपको मैं जिसके लिए तैयार कर रहा हूं, वो चीज फिर पूरी नहीं हो पाएगी. ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इसका खुद सॉल्यूशन करिए, और नहीं होता है या होता है तो उसके बाद अपने आप को रेक्टिफाई करिए. ठीक है, चलिए तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. The switch in the circuit as shown in figure. This is the switch, beta. The switch in the circuit as shown in figure operating, okay, as. फिर लिखा होगा बेटा, switch is at position A, okay, 0 to 7 मिलीसेकेंड. तो A वाली पोजीशन पे कब तक रहता है? 0 to 7 मिलीसेकेंड. एंड एट पोजीशन B 7 मिलीसेकेंड टू 10 मिलीसेकेंड. और इस वाले पे रहता है 7 मिलीसेकेंड से 10 मिलीसेकेंड तक. ओके, देन द रेशियो ऑफ 10 मिलीसेकेंड इन एवरी साइकिल. तो रिपीटेड नेचर है. जैसे 0 से 7 ए पे, 7 से 10 बी पे, 10 से 17 फिर ए पे, 17 से 20 फिर बी पे, 20 से 27 फिर ए पे, 27 से 30 फिर बी पे, और ऐसे इनफाइनाइट तक होता रहेगा. ओके, देन द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस टू द पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी ई इज. ये फाइंड आउट करना है. तो एक बार देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. ठीक है बालक, तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए बॉस शुरू करते हैं. तो कैलकुलेटर मैंने कहां रखा है वो मुझे सर्च करने ले दीजिए, क्योंकि मैं भूल गया आज रखना. ओके, यस, चलिए भाई, हर इंजीनियर के हाथ में कैलकुलेटर तो होना ही चाहिए बॉस. तो आगे बढ़ते हैं. सबको सही चल रहा है? हाँ भाई, सबको सही चल रहा है. कमेंट बॉक्स में बताया करो यार कि आप एंजॉय कर रहे हो सीरीज को कि नहीं. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले सर हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस एंड पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, रेशियो डेफिनेटली. तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन में, ये हमेशा ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट. ओके, वी नो दैट. ये मेरा टाइम काउंट नहीं करेंगे, है ना, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं. हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत कम टाइम में होगा, लेकिन अभी मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं. सो वी नो दैट, ओके, हीट लॉस, ओके, हीट लॉस, या हम बोले बेटा एवरेज पावर, ओके, या हम बोले बेटा पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, ऑल थिंग्स आर बेटा सेम, और एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टेंस, ये कुछ भी बोले हम. हीट लॉस अपने आप में रेजिस्टिव पावर होती है, एवरेज पावर, और बेटा पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, ऑल टर्म्स आर एब्सोल्युटली सेम. और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सर अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के थ्रू बेटा कोई करंट पास होगी और उसकी वजह से कोई वोल्टेज डेवलप होगा. तो इस पावर को हम लिख सकते हैं सर P, इसको हम R लिखते हैं बेटा, R और R.
इसको हम लिख सकते हैं पी आर रजिस्टिव पावर इक्वल टू आई आर आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर और वी आर आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आपने कहा बिल्कुल सर, ये चीज हम जानते हैं। तो इसका मतलब ऑन दिस बेस बेटा वी कैन से अवर हीट लॉसेस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू। एक पॉइंट क्लियर, यानी कि जब भी हम रजिस्टिव पावर यूज करेंगे, सॉरी कैलकुलेट करेंगे, ऑल दोस टाइम बेटा वी हैव टू यूज आरएमएस वैल्यू ऑफ रजिस्टिव वोल्टेज और आरएमएस वैल्यूज ऑफ रजिस्टिव करंट टू कैलकुलेट पावर। दूसरा पॉइंट आता है सर बैटरी की पावर निकालनी। बैटरी इज प्योर डीसी ना, तो प्योर डीसी के केस में हम ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से कैरी करना, एंड बेटा पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब बाय डीसी सोर्सेस, और इसको इससे लिख देते हैं बेटा प्योर डीसी सोर्सेस बाय प्योर डीसी एलिमेंट्स। ओके, यहां पे क्या है, बैटरी है सर। अगर हमारे पास कोई बैटरी हो बेटा, यहां पे ई, ओके, और या फिर कोई करंट सोर्स हो, मान लीजिए आई, ओके, इसको हम वी भी बोल सकते हैं या ई, कुछ भी बोलिए आप। ओके, ध्यान से समझना, एज वी नो दैट बेटा इन दिस केस करंट वी डोंट नो एंड इन दिस केस बेटा वोल्टेज वी डोंट नो, बिकॉज द करंट विल डिसाइड बाय द सर्किट एंड इन द करंट सोर्स voltage will decide by the circuit. So in this situation we have to write power of these sources is nothing but, अगर आप इसकी लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिखोगे E और V, ओके, जो भी आप लिख रहे हो, इनटू बेटा I एवरेज, और जब इसकी पावर लिखोगे तो आप लिखोगे V एवरेज जो इसके अक्रॉस है into I, okay, because we know that beta E, I are constant, so these are the pure DC signal. So in that situation we have to take V average or I average. Hopefully this beauty is clear. तो ये तो हो गए कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले पॉइंट पे चले बेटा, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे चले। अब सर क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ हाई एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला आपको ये 2 पॉइंट पता होने चाहिए कि रजिस्टिव पावर के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस सर्किट को हम कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे ले चलते हैं। ओके, चलिए बॉस, इसको यहां ले आए। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा, केस 1। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 क्या हो गया बेटा, सर केस 1 इज नथिंग बट इन द रेंज ऑफ 0 to 7 मिलीसेकंड बेटा दिस स्विच इज एट पोजीशन 1, 0 to 7 मिलीसेकंड बेटा दिस स्विच इज पोजीशन ए। तो अगर हम इसको ए पे लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार, ए पे लगा दिया, ठीक है, ये लेट मी चेंज दिस कलर, ए पे लगा दिया। ओके बेटा, ए पे, यानी कि इन दिस सिचुएशन बेटा दिस करंट विल बी 0। हमें ये करंट फाइंड आउट करना है क्योंकि ये रेजिस्टिव करंट है और इसी की पावर निकालनी थी। तो इस करंट को बेटा जी हम बोल देते हैं सम आई ऑफ 5 ओम, प्लीज माइंडेड, आई ऑफ 5 ओम। और इस करंट को बेटा, इस वाली करंट को हम बोल देते हैं कुछ आई ई व्हाटएवर। तो इसको हमने इन दिस रैंडम डायरेक्शन लिया है, इसमें हमने बोल दिया आई ई। देखो आई इस फैशन में ले लिया, ऐसी रैंडम, आप चाहे तो उल्टा भी ले लो, और ये अपनी i5, इन्हीं 2 की बात करनी है। तो जरा ध्यान समझना, इन द रेंज ऑफ 0 to 7 मिलीसेकंड माय डियर फ्रेंड, हियर द स्विच पोजीशन इज पॉइंट ए। तो इस केस में देखो ओनली बैटरी और रेजिस्टेंस, और तो कुछ है नहीं, और एक करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये बैटरी एक्साइटेशन में होगी। अच्छा देखो बेटा, बैटरी और रेजिस्टेंस है तो बैटरी कंफर्म पावर डिलीवर करेगी, और डिलीवर करेगी तो करंट थ्रू बैटरी बेटा विल पास फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, negative to positive, guaranteed ना। So now in this case बेटा how much current is passing sir, 5 ampere। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, by KVL we can write E is equal to 5 into 10, just by Ohm's law यार, 5 into 10 so is nothing but बेटा 50 वोल्ट। तो E की वैल्यू कितनी हो गई सर, 50 वोल्ट। अब आपको पता है बेटा E इज इंडिपेंडेंट बैटरी, और अगर E इंडिपेंडेंट बैटरी है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो गई, 50 वोल्ट। इतना ध्यान रखना है। सो द वैल्यू ऑफ E बेटा विल ऑलवेज बी 50 वोल्ट बिकॉज दिस इज प्योर डीसी, दिस इज प्योर डीसी। तो E की वैल्यू बेटा हमेशा के लिए कितनी हो जाएगी, 50 वोल्ट। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइक पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे सोल्यूशन में काउंट नहीं करनी है, क्योंकि सोल्यूशन तो बेटा कैसे भी हो जाएगा, जल्दी से हो गया। तो E की वैल्यू कितनी आई बेटा, 50 वोल्ट। और इसी सिचुएशन में E से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर, और किस डायरेक्शन में हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या हम ऐसे लिख रहे हैं सर, IE is equal to 5 एम्पियर इन दिस वे, अपर डायरेक्शन। और बेटा I5 क्या हो गया, I5 is nothing but सर 0 एम्पियर बिकॉज सर्किट इज ओपन। हटा इस पॉइंट को, हमें इस करंट और इस करंट पे फोकस देना है। क्यों सर, इन्हीं की पावर निकालनी है। सेकंड केस में आ जाओ बेटा। सेकंड केस ऑलमोस्ट सॉल्यूशन इज डन। केस सेकंड बेटा इज नथिंग बट सर 7 millisecond to 10 millisecond. So in this case what will happen, 7 millisecond to 10 millisecond. See here बेटा, अगर हम इस सर्किट को ले लें यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं सर, now this switch is position B
आपने देखा होगा क्वेश्चन में लिखा था, अब ये इस पोजीशन में आया। ई की वैल्यू कितनी है सर? ई की वैल्यू 50 वोल्ट थी। ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड। नाउ इन दिस सिचुएशन बेटा कितनी करंट फ्लो होगी? देखो यही तो लूप है, ये वाली करंट क्या हो गई? जीरो। अब इस बैटरी में अभी भी एक करंट फ्लो होगी, और इस करंट का नाम क्या है मेरे पूतलाल बेटा? सर इस करंट का नाम है आई मान लिया। Now in the same way current will flow, और how much? 50 divided by 5 is nothing but 10 ampere current। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे थे सर? in this case IE will be 10 ampere is also equal to I5, क्योंकि इससे पहले I5 तो जीरो था, अभी I5 क्या है? नॉन जीरो, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट 10 एम्पियर। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां से करंट और यहां से करंट की वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर लोगे? आपने कहा यस सर, क्यों नहीं ड्रॉ कर पाएंगे? तो मैंने कहा ड्रॉ करो बेटा। तो आपने कहा सर देखो IE और IR दोनों ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर IE ड्रॉ करें तो पहले केस में 5 एम्पियर, दूसरे केस में, पहले केस में 5 एम्पियर सर, और दूसरे केस में 10 एम्पियर सर। उसके बाद फिर से कितना सर? 5 एम्पियर और फिर 10 एम्पियर। इस वे से साइकिल रिपीट होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा 0, यहां पे सर 7 मिली सेकेंड, यहां पे 10 और यहां पे 17। तो हमने ये भी दिखा दिया साइकिल इज गोइंग टू बी रिपीट, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था। इस करंट को क्या बोलेंगे? IE, दिस वैल्यू इज नथिंग बट बेटा जी 5 एम्पियर, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट बेटा 10 एम्पियर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सर व्हाट विल बी द IR? ओके, तो सर स्टार्टिंग में तो ये जीरो है, लेट मी इंक्रीज दिस विड्थ। स्टार्टिंग में तो सर ये जीरो है, और 7 to 10 मिली सेकेंड के बीच में ये कितना है सर? ये तो 10 है, फिर उसके बाद जीरो है, फिर मास्टर जी ये 10 है। तो इसका मतलब सर ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये 7, ये 10, ये 17, एंड टाइम इन मिली सेकेंड। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर I of 5 ohm, एंड दिस पीक वैल्यू इज नथिंग बट 10 एम्पियर। हो गया। जैसे ही आपने इतना कर लिया, यकीन मानिए क्वेश्चन हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और एट मैक्स वी रिक्वायर बेटा 1 मिनट टू हैंडल दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में कोई इतना थोड़ा करता है यार, एग्जामिनेशन में तो अब तक आंसर आ चुका होता। सो नाउ बेटा कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस आई एवरेज? आपने कहा अरे मास्टर जी क्या बात करते हो, आई एवरेज अभी बता दें हम आपको। सो आई एवरेज इज नथिंग बट बेटा, आई एवरेज इज नथिंग बट, कैसे निकालते हैं सर? एवरेज वैल्यू निकालते हैं एरिया बाय टाइम पीरियड से। सो व्हाट विल बी द एरिया बेटा? दिस वन, फर्स्ट वन दिस फर्स्ट वन एरिया, यस सर 5 into 7, और ये दूसरा वाला सर 10 into 3, और मिली मिली कैंसिल। तो ये हो गया सर 5 into 7 फर्स्ट एरिया, 5 into 7 मिली, छोड़ दो उसको, प्लस के साथ दूसरा एरिया 10 into 3। अब आप कहेंगे सर मिली था तो टाइम पीरियड से डिवाइड भी तो करोगे। टाइम पीरियड इज हाउ मच? 10 मिली। सो मिली एंड मिली कैंसिल, ऐसे लिखोगे ना, मिली और ये मिली, सो मिली मिली कैंसिल। हाउ मच दिस वैल्यू विल कम सर? 7 पंचे 35 प्लस 10 या 30, तो 65 डिवाइडेड बाई 10 इज नथिंग बट बेटा 6.5 एम्पियर इज द एवरेज करंट। चेक करो, सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी कैलकुलेशन को क्षमा करिएगा अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, ओके? क्योंकि अकेले जूझता रहता हूं, आप तो कमेंट बॉक्स में भी नहीं बताओगे शायद कि सर सॉल्यूशन सही है। चलो यही बताना कि सर आपने जो कैलकुलेशन की वो सही है, ओके? सो 5 सत्ते 35 प्लस 10 या 30, 35 और 30 इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 10, सो 6.5 एम्पियर। नाउ बेटा अगला आरएमएस करंट क्या होगी? 5 ओम की आरएमएस करंट। सर आरएमएस के लिए क्या करते हैं? रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायरिंग के बाद एरिया देखो, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 100 इंटू 3, तो ये हो गया सर आई आरएमएस। 10 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज नथिंग बट 10 टू पावर हाफ, ओके? तो ये हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ 300 बटे 10, यानी कि 30 लिखते हैं। सो अंडर रूट ऑफ बेटा 30, बस हो गया। सो देखो 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, सो एक कट गया तो ये बचा 30 अंडर रूट 30, सो अंडर रूट 30 एम्पियर इज द दिस करंट। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। तो क्या आप बता सकते हो बेटा बैटरी पावर क्या होगी? सो सर देयरफॉर पीई बैटरी पावर इज नथिंग बट, बैटरी वैल्यू कितनी सर? सर 50 वोल्ट इनटू एवरेज करंट आपको लेनी है, आरएमएस नहीं। तो हमने एवरेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 6.5। सो ये पावर कितनी हो गई सर? ये पावर हो गई मास्टर जी 6.5 इंटू 50, ओके? ये हो गई 325 वॉट इज द, and what will be the sir 5 ohm power? 5 ohm power sir IRMS square into R, so under root 30 का whole square into what is the value of R? I think 10 ohm ना, so yes R value, sorry 5 ohm, so R value is nothing but 5 ohm, R value is 5 ohm, so I square into R, so this is 5 ohm, so इसका मतलब बेटा 30 into 5 is nothing but 150 watt। हमें क्या निकालना था? पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, रेशियो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस टू द पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। सो बेटा फाइनल आंसर इज नथिंग बट P of 5 ohm divided by P of E, okay? 5 ohm, so it will be 150 divided by 325, so this value will come 150 divided by, answer is
0.4615. 0.4615 is the final answer. This is the ratio. Hopefully you have enjoyed the solution. एंड रियली आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आज के सेशन से। अब मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूं बेटा एवरेज सॉरी इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे I5 की, या इसकी आरएमएस कैसे निकालेंगे, नीड नहीं, हालांकि आपको आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आप इसको समझिए, इस ब्यूटी को समझिए। ऐसे क्वेश्चन गेट में आते जाते रहते हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन की एक एक बारीकी को आप समझिए, और अगर कहीं भी कोई डाउट हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को प्रेजेंट बैच में 6 PM पे मैं सर्किट थ्योरी ले रहा हूं, वहां पे कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, और अभी कल जो चलेगा वो चलेगा बेटा सुपर मैश एनालिसिस, सुपर नोड एनालिसिस, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल एंड क्वेश्चन सेशन। उसके बाद हम आगे का बाद में बताते हैं, ठीक है। चलिए, एट द एंड अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा कि अगर आप सीरियस हैं तो आप Y503 कोड यूज करके फटाक से इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल इनके पेड कोर्सेज परचेज कर लीजिएगा। सीरियसली इकोनॉमिकल कॉस्ट, जस्ट फीस इज बेटा 5500। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।